Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I'm the जी जी director of please start. Sure. Assalamu alaikum ji. My name is Kiran Amir and I am the director of operations at Parsa Echo Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to the fourth session in our series of hepatitis echo. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Please join the session through the iEcho email link to mark your attendance. We would like also to extend our gratitude to Gets Pharma for the ongoing campaign, Hep Aware Your Knowledge, Their Lifeline, under which this program is designed. This program consists of 6 sessions based on new World Health Organization guidelines for hepatitis B for primary care physicians. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO, based in USA, aiming to disseminate knowledge and best practices. Parsa Echo Pakistan started as a hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. Our objective is for community providers to learn through video technology, participating in guided practice with specialist mentors. This allows them to treat patients otherwise referred out, ensuring patients with chronic condition receive high quality care without the need to travel and long waits. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted. However, we encourage participation, so you can unmute yourself for question or use the raised hand option and chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME certificates or credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. Please fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of the participant, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whichever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Dr. Zishan Ali Junejo, is a fellow of College of Physician and Surgeon, Pakistan, and currently working as Associate Professor of Medicine in Jinnah Sindh Medical University and Head of Medical Unit 4 and Medical ICU, Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, Pakistan. He has been involved with the Parsa Echo Pakistan since its very beginning and been a true echo champion. He is the echo lead in the province of Sindh and has keen interest in medical education. Currently, he also holds the portfolio of Senior Vice President, Pakistan Society of Hepatology. He is responsible for overseeing all the project related to Sindh and enrollment of participants locally. We have 2 cases today, and Dr. Amna will be presenting as will be our case presenter. Dr. Ikram Raja will be moderating the session today. So without further delay, I will hand over to Dr. Amna. Dr. Amna. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Case number 1. 29 years old female presented in OPD with complaint of fatigue and mild nausea. Currently pregnant, 28 weeks, 3rd trimester. Her HBs antigen is positive, checked recently, no comorbidities, no family history of ACC. Abdominal ultrasound shows normal liver echo texture, no splenomegaly or ascites. Her labs are HB 13.7, TLC 5.2, platelets are 380, serum creat 0.5, bilirubin AST are not available, ALT 75, HBs antigen positive, anti-HCV negative, anti-HBs negative, HBs antigen positive, again anti-HBe negative. HBV DNA virus is 1578978 international units. Questions are: what other investigations are required in this patient? Does she need antiviral treatment? What to do if she refuses AVT? And how do we follow up in this patient? Thank you, Amna, for presenting the case. House is open for any discussion. If anybody wants to contribute amongst the audience, it's most welcome to raise arm and unmute yourself. And you can give comment or question or answer even. So I welcome all the participants. We'll keep it interactive.
so that we can discuss different aspects of managing hepatitis B in pregnancy. Anyone who wants to contribute? Well, this is the case of hepatitis B, very typical. He is presenting with mild nausea and fatigue. So we are not sure at this point that this may be acute hepatitis or she was suffering from chronic hepatitis. So as there are some symptoms related to liver dysfunction, and she is in her third trimester and she has got a high viral load as well. Her labs does not show any chronic liver suggestive of chronic liver disease or advanced chronic liver disease. I must say the cirrhotic presentation, though we don't have AST at this point, and FE and before again have not been validated in pregnancy. So, but with normal platelets and higher normal ALT, we may look into this patient may not have cirrhosis at this point. And ultrasound is showing there is no spermogenital liver is normal, so we can safely say this patient probably is not cirrhotic. But she have got ALT, which is high. For women, the range is 25, which we take it as a normal. And in this case, this is 75. Acute or maybe chronic hepatitis B in third advanced pregnancy with no significant liver-related problem at point other than few symptoms of fatigue and the nausea. So what other investigation I would like to look into confirming this case as acute hepatitis or a chronic hepatitis. For that, a full LFT, excellent Sabah. That's a good comment. And let me see. HB core IgM, that's again a good suggestion that to look for the acute hepatitis, whether this patient is having acute hepatitis or a chronic hepatitis, HB core IgM. But remember that HB core IgM is sometimes also positive in a flare of chronic hepatitis B as well. So in fact, core IgM, if we look into many of the chronic hepatitis, which is related to acute flare in these patients as well. But yes, that is an investigation to differentiate between acute versus chronic infection. And full FT would be required because we would like to see bilirubin in this patient. I would like to follow that as well because in pregnancy it may be rising in later part of the pregnancy. For all practical purpose, that has been the LFT as well as the before would all be required, or INR again is one of the investigations which we would like to follow because if this patient would be acute hepatitis, we would be looking for monitoring this patient for liver failure, which seems unlikely in this clinical scenario at this point. So the point that in patient which is suffering from chronic hepatitis B with a high viral load, more than 2000 international unit, is the one who requires, again, question in front of us is what to do for the mother and what to do for the child whenever we are dealing with a pregnant patient. For the mother, there is ALT derangement with a high viral load. We don't have E antigen as well. Nobody commented on that because the mother to child transmission, sorry, I just messaged it was there in the data, E antigen is positive because that again makes the case. Can somebody make the difference? What would be the difference of HBe antigen on mother to child transmission? And somebody can comment in chat or if somebody wants to discuss that, they can unmute their mic as well. हम बाइलिंगुअल कर लेते हैं क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल ऑडियंस है आज, जो सभी लोग जो मुझे नजर आ रहा है तकरीबन पाकिस्तान से मेरा ख्याल उर्दू समझते होंगे। जी सर, आप उर्दू में बिल्कुल कर सकते हैं। जी, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि हम उर्दू में भी अगर सवाल करके जवाब देना या सवाल करना या कमेंट देना हो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि ई एंटीजन का कोई ताल्लुक है इस सारे सिनेरियो के अंदर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी ई एंटीजन की। चैट में अगर कोई बता सके कि ई एंटीजन का प्रेग्नेंट वुमेन में मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में कितना इफेक्ट है।
वेल इसमें 18 गुना ज्यादा जो है वो तकरीबन जो है ना रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, सिर्फ ई एंटीजन पॉजिटिव होने से। तो दैट मेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट एज वेल कि ये वायरल लोड दो के ज्यादा है, अगर ये कम भी होता तो ई एंटीजन पॉजिटिव मदर के अंदर जो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इंट्रापार्टम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें इंटरवेंशन करनी होगी। दूसरा जो चीज जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के अंदर, वो वायरल लोड होता है इटसेल्फ। ये वायरल लोड जो है वो अगर 2000 से ज्यादा है तो ये चारा बढ़ जाता है रिस्क जो है ट्रांसमिट का। नॉर्मल जो हेपेटाइटिस बी की मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, अगर ये वायरल लोड 2000 है तो ये 3% है 2000 से, लेकिन अगर ये 2 लाख से ऊपर चला जाता है तो यही जो रिस्क है वो 4 गुना बढ़ जाता है और 20% से ऊपर चला जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें वायरल लोड पता होना चाहिए। तो बच्चे के अंदर माँ से ये वायरस जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी जो चीज है वो ई एंटीजन पॉजिटिविटी और वायरल लोड के ऊपर होता है सबसे ज्यादा। जो मोड ऑफ डिलीवरी है उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ट्रांसमिशन का टाइम है वो आमतौर पे इंट्रापार्टम होता है, इस टाइम पे बच्चा डिलीवर हो रहा होता है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ट्रांसमिशन का रिस्क मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत रोबस्ट डेटा मौजूद नहीं है। और प्रिवेंशन के अंदर जो वैक्सीनेशन का पैसिव और एक्टिव रोल है प्रिवेंट करने में बच्चे को हेपेटाइटिस बी होने से, वो एक इनडायरेक्ट डेटा है कि बच्चे को शायद इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ट्रांसफर होता नहीं है, ये होता इंटरपार्टम ही है, इस टाइम पे बच्चा डिलीवर हो रहा होता है। तो जो ट्रांसमिशन को बहरहाल प्रिवेंट करने में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक एंटीवायरल ट्रीटमेंट है इसके अंदर, और बच्चे की वैक्सीनेशन है जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जो इन्वेस्टिगेशन, जो पहला सवाल हमारे लिए था, हमने बात की इस पे, कोर आईजीएम करेंगे, कंप्लीट एलएफटी करेंगे, आईएनआर करेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको हम करेंगे। इसमें एक और चीज जो आपको ऐड करनी है, क्योंकि आप इस पेशेंट के अंदर जो डेटा दिया गया है दवा शुरू करनी है, तो दवा की सेफ्टी मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपको जो क्रेटिनिन है वो अवेलेबल नहीं है, सॉरी क्रेटिनिन अवेलेबल है, यस सबा ने कमेंट किया, लेकिन दैट्स अवेलेबल इन द डेटा एज वेल। कि क्रेटिनिन करेंगे, यूरिन डीआर देखेंगे हम, क्योंकि जो दवा की सेफ्टी है उसको हमने मॉनिटर करना है जब आप दवा देंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूरिन डीआर, क्रेटिनिन और जो है वो ये भी इसको चेक करेंगे। बोन स्टडीज इज नॉट, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का हम प्लान कर भी नहीं रहे इस पेशेंट के लिए। तो दैट इज वन। अच्छा फिर उसके सर, जी एक चीज यहाँ पे प्लीज इकराम। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें उस पे, कि जब हमारे पास पेशेंट आता है हेपेटाइटिस बी का, और खास तौर पे जब उसमें एएलटी लेवल भी ज्यादा होता है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मतलब किस तरह आप इसको लेके चलते हैं, खास तौर पे हेपेटाइटिस डी को, कि आप रूटीन में वो पेशेंट में करवाते हैं, खास तौर पे जब एएलटी ज्यादा हो या नॉर्मल हो, तो उसका मतलब वो करवाना चाहिए हमें रूटीन में कि नहीं करवाना चाहिए? हेपेटाइटिस डी का टेस्ट? जी जी, एंटी एचडीवी एंटीबॉडीज। अच्छा, अब एंटी एचडीवी की जब खाली प्रेगनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, ये पॉइंट मिस हो गया। बहुत अच्छा क्या इकराम आपने याद दिला दिया। हम क्योंकि सिंध में प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारी प्रैक्टिस ये है कि एक रिफ्लेक्स टेस्टिंग है कि जो बी का पॉजिटिव पेशेंट आता है हम उसका जो है डी जरूर चेक करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द वायरल है, क्या एज है, क्या कोमोर्बिड कंडीशंस है। ये हमारा एक रिफ्लेक्स टेस्ट होता है। क्योंकि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिंध के अंदर सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस डी के केसेस हैं। केपी में बहुत रेयरली रिपोर्टेड है, पंजाब के कुछ एरियाज के अंदर जो साउदर्न एरियाज हैं उसमें कहीं कहीं हेपेटाइटिस डी की पॉकेट्स हैं। लेकिन सिंध में काफी जगहों पे, कराची इसमें एक बड़ा हब है, जो राइट बैंक के जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं रिवर इंडस की, जैकबाबाद, शिकारपुर और बिल्कुल। जो है लड़काना, ये सारी की सारी जो है हाई प्रेवलेंट एरियाज हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ एरियाज हैं जहाँ के अंदर हेपेटाइटिस डी बहुत कॉमनली रिपोर्टेड है। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस है कि जो भी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट आता है, एज ए रिफ्लेक्स whichever प्रॉब्लम ही और शी इज प्रेजेंटिंग, और वॉट एवर स्टेट ऑफ द फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दे आर प्रेजेंटिंग, हम उनका डी जरूर करवाते हैं। ठीक है ना? तो दैट इज अगेन इन्वेस्टिगेशन जिसमें, थैंक यू इकराम फॉर रिमाइंडिंग मी कि जी सर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डज शी नीड एंटीवायरल ट्रीटमेंट, व्हाट टू डू इफ शी रिफ्यूजेस एंटीवायरल। अब ये दो अलग अलग सवाल हैं, इसको अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एंटीवायरल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट, इंडिकेशन क्या है और क्यों देनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी में?
एक तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि पेशेंट का अपना लिवर खराब ना हो, मरीज की अपनी लिवर डिजीज जो है वो खराब ना हो। वो एक हमारी एक कंसर्न होता है कि इसकी वायरल लोड जितना कम रखा जाए और पेशेंट का वायरल पीसीआर जो है या वायरल लोड जो है वो नेगेटिव रखा जाए। दैट इज वन इंडिकेशन जो हर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के लिए हमारी इंडिकेशन होती है रिगार्डलेस ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बच्चे को ट्रांसमिशन है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को। हमने बात की दो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं मदर टू चाइल्ड, ए हाई वायरल लोड, बी ई एंटीजन स्टेटस, इसके ये दोनों पॉजिटिव हैं इस पेशेंट के। तो डेफिनेटली शी नीड्स एंटीवायरल थेरेपी, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे में जो है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन काफी ज्यादा है अगर हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात जो सवाल का दूसरा हिस्सा कि दवा की तो जरूरत है, इसको दवा देनी चाहिए, और जो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ दवा है जो कि टेस्टेड है और जो वो है टीडीएफ या टेनोफोविर डाइप्रोफॉक्सिल। कि जो टीएफ है टेनोफोविर का दूसरा वेरिएंट है, वो कि अभी डेटा जो रिसेंट आ रहा है एचआईवी के अंदर उसके कोई हार्म्स देखे नहीं गए हैं, लेकिन रिकमेंडेड गाइडलाइंस में अभी तक नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट ऑल्टरनेट है, जैसा रीनल डिजीज वाला पेशेंट है, उसमें तो आप शायद विद कैविएट ऑफ दैट के डिस्क्लेमर के भाई ये नुकसान कर सकती है और टेस्टेड नहीं है और रिकमेंडेड नहीं है, आप शायद एज एन ऑल्टरनेट ट्राई करें उस पेशेंट में जो किडनी डिजीज के साथ हो। बाकी जनरली प्रेग्नेंट पेशेंट्स के अंदर टेनोफोविर जो डीएफ वेरिएंट है वो रिकमेंडेड है और वही लिखा जाता है, वही तमाम गाइडलाइंस के अंदर है, क्योंकि हाई जेनेटिक बैरियर है रेजिस्टेंस के लिए और बहुत एफिकेसी इसकी है वायरल लोड को सप्रेस करने के अंदर। और इसके ऊपर स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में ट्रायल्स हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं कि ये वायरल की मदद टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को सप्रेस करता है। तो एविडेंस बेस है पीडीएफ का इस्तेमाल। हाँ, जो पेशेंट रीनल डिजीज वाले हैं, जो सिवियर ऑस्टियोपोरोटिक मेटाबॉलिक बोन डिजीज वाले हैं, उनमें शायद आप ऑल्टरनेट दवा के बारे में सोचेंगे, लेकिन प्रूवन एफिकेसी नहीं है टैफ की, और इसके सेफ्टी प्रोफाइल इतनी स्टैब्लिश नहीं है कंपैरेटिव टू टीडीएफ। तो ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की कि क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए और देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। डोजेज का रिमाइंड करता जाऊं, आप सब लोगों को पता ही होगा टीडीएफ की डोज 300 मिलीग्राम पर डे होती है और टेफ की जो डोज होती है वो 25 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, वो दी जाती है। लेकिन टेफ सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है रीनल डिजीज वाले पेशेंट में, विद डिस्क्लेमर के ये अप्रूव दवा नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। अप्रूव्ड एफडीए अप्रूवल अच्छा के जो सॉरी सर, यहाँ पे एक थोड़ी जी सी क्या मेरा नेट सॉरी कमजोर सर, है या मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस बात पे भी एम्फेसाइज जो कि फर्स्ट टेस्ट किया है और उसका सॉरी क्या, मेरा ख्याल है या तो मेरा नेट खराब है या पता नहीं आपकी वाली साइड पे मुझे आवाज कट रही है, क्वेश्चन साफ नहीं सुनाई दे रहा। जी 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 अभी आवाज आ रही है सर? मैं जी जी अभी आ रही, जी अभी आई है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चाहूंगा सर कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, जैसे ये फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो रहे हैं, आई मीन हेपेटाइटिस बी फर्स्ट टाइम हुआ है और यहाँ पे पेशेंट प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, यहाँ पे अगर पेशेंट की जो जैसे प्रेगनेंसी हो या नॉन प्रेग्नेंट हो और ट्रीटमेंट इंडिकेशंस अगर पूरी हो रही हैं, तो यहाँ पे ये भी प्लीज थोड़ा सा इस पे एम्फेसाइज कर दें कि आया हम इन्हें जो ट्रीटमेंट जैसे सिर्फ प्रेगनेंसी में तो हमने देनी है प्रिवेंशन के लिए टू फीटल ट्रांसमिशन के लिए, वो तो बड़ी लिमिटेड होगी। यहाँ पे अगर पेशेंट की इंडिकेशंस पूरी हो रही हैं तो फिर हम उन्हें मतलब उसमें ले आएंगे कि हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो हम देते हैं डिपेंडिंग ऑन द अदर इंडिकेशंस और ड्यूरेशन, तो फिर हम उन्हें ट्रीटमेंट शुरू करा देंगे। और अगर वो उन इंडिकेशन को पूरा नहीं करें तो फिर हम वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए देंगे, जो जैसे आप आगे शायद आप के कितने वीक्स लेके कितने वीक तक। तो इस पेशेंट में जैसे जी 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 एएलटी ज्यादा है और वायरल लोड भी ज्यादा है, तो ये इसको हम उस ट्रीटमेंट उसमें लेके आ सकते हैं। जी जी काम अब अच्छा, अब ये जो एक आपने एस्पेक्ट छोड़ा है, करें प्लीज। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट इंडिकेशंस हैं, जो 2024 की मार्च के अंदर जो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस आई हैं उसमें तो एक प्रेगनेंसी में हम रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन एंड ट्राइमेस्टर आप शुरू कर देंगे। लेकिन जो कन्वेंशनल हमारी अभी भी जो सोसाइटी गाइडलाइंस है मेजोरिटी, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में रिकमेंड करते हैं कि आप दें मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। लेकिन जो इकराम ने बात शुरू की है
कि आप कैंडिडेसी तो चेक कर लें कि हेपेटाइटिस की हो सकता है ये बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग हुई हो और इसमें वैसे भी हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट की इंडिकेशन मौजूद हो। अब उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप इस पेशेंट को देखते हैं कि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस था और बाई चांस अभी पता चल गया, आपने एलएफटी चेक कर लिया, ओबीडी रेंज है, हाई वायरल लोड दिया है ये पेशेंट, तो तो क्या ये पेशेंट कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस बी का? तो शायद है। या एलएफटी अगर डी रेंज हो, हाई वायरल लोड हो पेशेंट, तो शी में एंड अप विद केस जिसमें आप फाइब्रोसिस असेसमेंट कर लें। फाइब्रोसिस असेसमेंट अगेन जो टेस्ट फाइब्रोसिस असेसमेंट में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है वो वैलिडेटेड नहीं है, जो हम करते हैं नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग जितनी भी। तो वी में रिव्यू दिस सिनेरियो आफ्टर द प्रेगनेंसी कि इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में जो हमारा इमीडिएट टारगेट तो होता है वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है। और उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर ये बच्चा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट हुआ तो 90% चांसेस ये हैं कि ये लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड रहेगा और ये वायरस खत्म नहीं होगा इसकी बॉडी से। तो दैट्स वेयर इज इम्पोर्टेंट कि हम इसको पेशेंट की ट्रांसमिशन को रोक सकें, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। दवा की बात हुई थी कि इसको हम दवा देंगे। ड्यूरेशन के ऊपर इकराम ने क्वेश्चन किया था। जब हम प्रेगनेंसी के लिए शुरू करते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन तो जब तक के बच्चा डिलीवर होता है उस वक्त तक हम कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम बंद कर सकते हैं। लेकिन बंद करने का डिसीजन इस पर्टिकुलर पेशेंट में, क्योंकि एलटीडी रेंज है और हम शायद आफ्टर 4 to 6 वीक्स लें, जब हम रीअसेस करें इस पेशेंट को कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है या नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन के अंदर अगर क्या दवा शुरू कंटिन्यू कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कितने दिन करनी चाहिए? अगर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रिवेंट कर रहे हैं तो थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरू में 28 या 26 वीक से आप शुरू कर सकते हैं जब आप पीसीआर करवाते हैं। दैट इज द रिकमेंडेड टाइम कि जब आप पीसीआर स्क्रीन करें बी सफिशिएंट एंटीजन पॉजिटिव मदर को, तो उस टाइम पे आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और जब बच्चा डिलीवर होता है उस वक्त तक करनी की इंडिकेशन है। उसके बाद अगर तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई इंडिकेशन नहीं थी जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी इवैल्यूएशंस हो रही थी उस दौरान, तो आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइमरी टारगेट इसमें बच्चे को बचाना था, नॉट द मदर इटसेल्फ। कैन आई हैव द केस अगेन? स्लाइड अगर शेयर कर लें आमना आप, तो एवरीबडी कैन सी द डेटा एज वेल ना। उजैर प्लीज आप जी केस की स्लाइड शेयर कर दीजिए। स्लाइड शेयर कर दें, वो जैनब ने कमेंट भी किया है इसके अंदर, तो केस शेयर कर लें। So we were talking about कि antiviral treatment indication, yes, duration we will decide इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ALT रेंज है, इसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन यस टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड उस वक्त तक फर्स्ट कंटिन्यू करना है हमने, और ये पेशेंट शायद लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे चले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर शी रिफ्यूजेस द ट्रीटमेंट आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? कि अगर ये एक तो पेशेंट को अच्छे तरीके से काउंसिल करना है कि बच्चे को ट्रांसमिशन का रिस्क एंटीजन पॉजिटिव स्टेज हाई वाला लोड 20% से ज्यादा होगा इसके अंदर, दैट इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क, और लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस बी होगा। तो यू विल ट्राई टू कन्विंस दिस पेशेंट कि आप एंटीवायरल थेरेपी ले लें। एंटीवायरल थेरेपी सेफ है। देयर हैव बीन more than 18,000 pregnancies reported with TDF which have shown no harm to the child or the mother during the pregnancy, so it's very safe drug, though it's still not FDA approved, but it is a safe drug, enough data is available for that. तो कन्विंस करने की कोशिश करें, नहीं पेशेंट कन्विंस होता, पेशेंट की चॉइस है, जाहिर है आप फोर्स नहीं कर सकते उसको। फिर बच्चे को प्रिवेंट करने के अदर ऑप्शंस क्या हैं? क्वेश्चन कि क्या सिजेरियन सेक्शन प्रिवेंट करता है? कतई नहीं करता है। कोई डेटा मौजूद नहीं है जो सपोर्ट करे कि सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करने से बच्चे की जो ट्रांसमिशन है वो चेंज होगी, रिस्क चेंज होगा। So there is no indication of routine indications remains there, but not for hepatitis B transmission prevention. तो उसके अलावा the other options to preventing the mother to child transmission is active and passive immunization. WHO अब प्रोटोकॉल से पैसिव इम्यूनाइजेशन से बाहर आ गया है। वो कहते हैं कि अगर बर्थ डोज वैक्सीनेशन है और एंटीवायरल थेरेपी दी गई है लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रूव नहीं हो रही थी, जो एचबी की खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां ये बहुत कॉस्टली है, बट स्टिल वेयर इट इज अवेलेबल इट शुड बी गिवन, रिमेंबर दैट कैविएट, एचबी शुड बी गिवन।
लेकिन WHO की जो अभी करंट गाइडलाइंस हैं उसके तहत एडविक आप ओमिट कर सकते हैं, बट यू हैव टू एंश्योर द पेशेंट टेक्स एंटीवायरल थेरेपी in last trimester and gets the birth dose vaccination within 12 hours of delivery. So these two things are done. जब आप इंडिविजुअली रिस्क के ऊपर बात करें तो एंटीवायरल थेरेपी कैन रिड्यूस एंटीवायरल थेरेपी विद एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन कैन रिड्यूस द HBV ट्रांसमिशन बाय 92%, एंड दैट्स अ ह्यूज सक्सेस कि आपका 92% डिजीज का रिस्क आप कम कर देते हैं. Alone HB can reduce by 40 to 50%. Alone birth dose vaccination can reduce by 70%. But in combination, they can reduce more than 92%. So this is again an option in these patients कि अगर वो antiviral नहीं भी ले रहे हैं तो passive active immunization can reduce significantly the harm which can be produced by this. So if she is not taking it and you have counseled it, then you can still active passive immunization can reduce more than 90% risk of the disease transmission. Acha, I will just go through the comment. Sabha have commented, will we treat her with antiviral if this patient has an acute HB or IgM positive? And that's again a very good question, Sabha. Acute hepatitis B प्रेगनेंसी में होता है तो उसकी ट्रीटमेंट इंडिकेशन क्या होगी? उसकी ट्रीटमेंट इंडिकेशन अगेन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर पेशेंट है और वायरल लोड ज्यादा है तो इन दैट केस यस यू वुड ट्रीट इवन एन एक्यूट हेपेटाइटिस बी. ठीक है, द सेम वे एज यू ट्रीट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी. वायरल लोड अगर ज्यादा है, ई एंटीजन पॉजिटिव डिजीज है, इवन इफ इट इज एक्यूट इट शुड बी ट्रीटेड विद एंटीवायरल थेरेपी. दैट्स द रिकमेंडेशन ऑफ HLD फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस एज वेल. So I hope I have answered this question. If she refuses, what are our options to reduce the risk of mother to child transmission? Follow up इस patient का ये क्यों important है? Next question जो है ये follow up. Pregnancy is, if you remember, immunosuppressed state. एक foreign body में होती है, fetus मौजूद होता है तो कुदरती तौर पे जो immune system है वो उसको accept करता है, उसको tolerate करता है. तो immune system जो थोड़ा सा है tone down हुआ होता है, इसी वजह से most of the autoimmune disorders go into remission during the pregnancy. ये कुदरत का एक निजाम है. Once the pregnancy is over, the immune system start working again, and that is the time, even if the patient was not treated or not was decided to be followed only कि low viral load था, there is a chance of flare. And there is a study in which 50%, more than 50% of the patients with hepatitis B surface antigen positive had flare after the pregnancy. So this is important aspect to remember कि उसके बाद उसको follow करना है. There are guidelines, not very जैसे कहते हैं ना strong recommendation, but they do say कि 1 month पे, 3 month पे और 6 month पे आप ALT और HBV DNA चेक करें. surface antigen recover जैसे कहते हैं सीरो कन्वर्जन के भी चांसेस होते हैं इस फ्लेयर्स में, लेकिन इस फ्लेयर को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है. इट में एंड अप विद रेफलमेंट हेपेटिक फेलियर एज वेल. तो पोस्ट प्रेगनेंसी केयर हेपेटाइटिस बी की जो है वो इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जब आपने एंटीवायरल दे के बंद किया है. किसी भी केस में जब भी आजकल हम लोग रिकमेंड नहीं करते एंटीवायरल को बंद करना, लेकिन अगर आप एंटीवायरल दे के कभी भी बंद करते हैं हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में तो उसके इमीडिएट 6 मंथ्स के अंदर फ्लेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. और वो फ्लेयर गुड और बैड फ्लेयर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. द गुड फ्लेयर इज दोज जिसमें जो एलटी वगैरह थोड़ा सा बढ़ता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और सीरो कन्वर्जन हो जाती है और एंटी एचबीएस डेवलप हो जाती है. तो ये गुड फ्लेयर्स कहलाते हैं. बैड फ्लेयर्स के अंदर जो है वो फाइब्रोसिस और लिवर डैमेज जो है एक्सेलरेट हो जाता है, तो इसको ट्रीट करने की इंडिकेशन होती है. यू वुड फॉलो दिस पेशेंट 1 month, 3 month, 6 month LFTs एंड वायरल लोड. और अगर पेशेंट के फ्लेयर हो रहा हो तो we might take a decision to restart with the therapy if we have stopped it at the end of the pregnancy. बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे जो है if we have stopped already. So this patient would need at least 6 months follow up with hepatitis B patient. In any case would be for lifelong follow up, लेकिन immediately post pregnancy care के अंदर LFTs और HBV viral load के साथ उस patient को follow करने की indication है. If there is any other comment or question on this case, I'll be happy to respond. Otherwise, we'll take a next case. जी, मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं. कोई अभी क्वेश्चन वगैरह है तो ले लेंगे फिर. Thank you, Ikram. जी Uzair, can I have a डॉक्टर next case? उजैर प्लीज आप नेक्स्ट
जी जस्ट वेट अ मोमेंट में कर रहा हूँ. So there is a comment probably or question in the chat. I will respond to that. Should we give at least 6 months एंटीवायरल थेरेपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. 6 मंथ्स का कोई नहीं है. हमने कहा कि ट्रीटमेंट डिसीजन, जिस तरह राम ने बीच में कमेंट भी किया था, दो चीजें मुझे आपने डिसाइड करनी है. क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाला पेशेंट है कि अभी इत्तेफाक से डायग्नोज हो गया, प्रेगनेंसी की वजह से स्क्रीन हुआ, लेकिन ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस था, और इसको इन एनी केस अगर प्रेगनेंसी नहीं भी होती तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी. क्या हो गया है? एक्सक्यूज मी, केस क्या हुआ है आमना? शुड आई शेयर? जी जी सर, अब मैं शेयर करती हूँ. अच्छा ठीक है, ठीक है, केस आ गया ना. जी जी. अब देखिए एक क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आया हुआ, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस ओके दिस केस. ठीक ओके है ना? ओके. उमैर ने क्वेश्चन किया था कि ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी से रिलेटेड, कि 6 महीने देंगे. नहीं, अगर तो ये पेशेंट लॉन्ग टर्म थेरेपी है तो लॉन्ग टर्म थेरेपी देंगे, वो प्रॉब्ली लाइफ लॉन्ग थेरेपी होगी. लेकिन अगर ये पेशेंट हमने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए की थी, तो एट द टाइम ऑफ टर्म जो है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो हम स्टॉप कर देते हैं इन पेशेंट्स को और उसको फिर फॉलो करते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी केयर के लिए. तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी. नाउ द नेक्स्ट केस प्लीज आमना, आप पढ़ लें. जी डॉक्टर आमना, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को. Case number 2. A 25 years old female lactating mother recently delivered a baby via C-section 22 days ago. Presented in OPD with complaint of lower abdominal pain and constipation. HPS antigen is positive on her pre-op labs. No other comorbidities. No family history of HCC. Abdominal ultrasound shows normal liver echo texture. No splenomegaly or ascites. Her lab parameters are HB 12.7, TLC count 8.3, platelets are 299, serum creat 0.8, serum bilirubin 0.9, AST 130, ALT 98, alkaline phosphatase 251, serum albumin 3.3. Regarding HPV workup, HPS antigen positive, anti-HCV negative, HPE antigen positive and anti-HPE is negative, anti-HTV negative, anti-HIV and 1 and 2 is also negative. DNA viral load is 21,40,000 international units. Questions are: how to manage this patient? What should be done for the baby now? What are the guidelines for breastfeeding in HPV positive mother? Guidelines if on AVT. Thank you, Dr. Amanam, for your case. Again, house remains open for any question or comment. आप लोग unmute करें, or you can ask a question if you want, or you can chat के अंदर अगर आप comment करते हैं, तो I will be following that. Now that again, this is a baby that has been delivered 22 days back, and this baby is lactating her child. अच्छा, एक क्विक जो है, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप लोग चैट में मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, और इफ आई कैन गेट कि लैक्टेशन का क्या वो है. कैन these patients with B surface antigen positive high viral load patients lactate their children or not? Yes no में जवाब दे दें, जल्दी जल्दी चैट में दे दें या वैसे दें. Amna Sabir said can lactate. Okay, thank you very much. And Umair Hassan said he can lactate. Anyone else have any other ideas? So yes, you're right. Lactation is allowed. Hepatitis B virus. Okay, Ghulam Qadir is saying she can lactate, but not on antiviral therapy. We'll discuss that. अच्छा, लैक्टेशन के जहाँ तक हेपेटाइटिस बी वायरस की ट्रांसमिशन का ताल्लुक है, तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वायरस की चांसेस बहुत कम होते हैं, और मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस
recommend to continue with the breastfeeding unless there is जो है ना cracks on the nipple and there is bleeding हो, वहां से कोई infection हो जिससे आपको ये है कि body fluids दूसरे जो है बहुत ज्यादा आ रहे हो, so that is the one condition in which you may stop lactation or जो है for some time till that heals. Otherwise either patient is on treatment or off treatment. Both of these cases के अंदर जो है वो lactation is safe and lactation can be done. दवा कौन सी है जो lactation के अंदर दी जा सकती है? Because once the baby is delivered, this lady is eligible for any of the antiviral treatment, and she can be on entecavir, she can be on tenofovir, DF or tenofovir AF depending upon her indication of the treatment. ये जैनब जमाल हैज अ क्वेश्चन कि क्रैक्ड निपल्स या क्रैक्ड निपल्स के अंदर है, ब्लीडिंग निपल्स है या कोई पस आ रही है, तो उस केस के अंदर जो है वो लैक्टेशन स्टॉप करनी है क्योंकि उसमें रिस्क बहरहाल कोई ट्रायल्स मौजूद नहीं है लेकिन थ्योरेटिकली उसमें रिस्क बढ़ जाता है एंड इट शुड बी डिस्करेज एट दैट टाइम, और वैसे भी पेनफुल होता है उस टाइम पे. इन एनी केस अगर हेपेटाइटिस बी नहीं भी हो, most of the mothers, lactating mothers would avoid giving इन्फेक्टेड निपल के साथ जो है या जो है डिजीज निपल के साथ जो है ट्रीट करना, अदरवाइज भी जो है शायद वो ना चाहें. तो दैट वाज द आंसर. वी आर कमिंग बैक टू द कि भाई दवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या दवा दी जानी चाहिए, व्हाट मेडिकेशंस आर सेफ आफ्टर the data again for the entecavir or tenofovir, both of them drugs have been anecdotally studies, no randomized control trials, but HIV के साथ जो tenofovir का एक्सपीरियंस है वो बहुत वास्ट है, इस वजह से डेटा बड़ा सेफ्टी का अवेलेबल है उसका. अगेन एंटाकेविर के ऊपर कोई ट्रायल्स मौजूद नहीं है और उसका एनेक्डोटल डेटा भी बड़ा लिमिटेड सा है, बट व्हाटएवर डेटा इज अवेलेबल, नो हार्म हैज बीन सीन इन दीस पेशेंट्स. सो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट को किस दवा की ज्यादा जरूरत है, दोनों दवाएं इफेक्टिव है और कैन बी कंटिन्यूड इन दीस पेशेंट्स इफ रिक्वायर्ड. तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो ये पेशेंट हम कैसे मैनेज करने जा रहे हैं. इफ यू लुक इनटू दिस जो है आप लोगों में से कोई कैलकुलेट कर ले, एएसटी इसका ज्यादा है लेकिन प्लेटलेट ठीक है, यानी कि इट वुड कम लाइकली इन वन गो के एएसटी जो है रिवर्स है इस पेशेंट के अंदर और उसको हाई वायरल लोड है, एएलटी बढ़ा हुआ है. दिस पेशेंट इज प्रॉब्ली हैविंग एन फ्लेयर ऑफ हेपेटाइटिस बी पोस्टपार्टम. वी कैन मॉनिटर पेशेंट्स जो पोस्टपार्टम फेज में होते हैं. थोड़ा फ्लेयर जो हमने बात शुरू में पिछले केस में की थी, गुड फ्लेयर और बैड फ्लेयर है. सम फ्लेयर which may instigate your immune response and lead to zero conversion. So closely monitor करने की जरूरत है इसको. आप शायद मंथली जो है ना LFTs फॉलो कर लें and then you can see anti-HBs लेवल के ये रिकवर करता है या नहीं करता है. If patient is not recovering, it is persistently elevated, this patient might need treatment, and ये ट्रीटमेंट जो है वो बच्चे को ट्रांसमिशन को रोकने के लिए नहीं है. ये ट्रीटमेंट जो है वो मदर की हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट है. तो मदर की क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट की लाइंस में इसको ट्रीट किया जाएगा. तो फिर जो ड्यूरेशन है वो लाइकली लाइफ लॉन्ग रहेगा या एटलीस्ट 3 to 5 years का ट्रीटमेंट होगा. तो ये जो काउंसलिंग होगी ट्रीटमेंट की वो उस कॉन्टेक्स्ट में, जो भी एक सवाल आया भी था कि 6 महीने की ट्रीटमेंट इंट्रा पार्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रीटमेंट आप शुरू कर रहे हैं प्रिवेंट मदर की है वो प्रेगनेंसी टर्म के ऊपर खत्म हो जाएगी. लेकिन ये ट्रीटमेंट जो आप शुरू करने जाएंगे ये शायद पेशेंट को 3 से 5 साल मिनिमम देनी पड़ेगी, शायद लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेगी. इस काउंसलिंग के साथ शुरू होगी. ठीक है. यू मे फॉलो दिस पेशेंट फॉर 2-3 months कि अगर ये एक गुड फ्लेयर है और पेशेंट जो है वो सीरो कन्वर्जन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, और वो पता कैसे चलेगा आपको कि सरफेस एंटीजन लेवल्स और एएलटी आईडी वायरल लोड कम होना शुरू हो जाएंगे, एएलटी बेहतर होना शुरू हो जाएगा प्रोग्रेसिवली एंड वन डे टेस्ट ये सरफेस एंटी एचबीएस जो है वो पॉजिटिव आएगा. लेकिन ऑन द अदर वे अराउंड एएलटी परसिस्टेंट में भी एलिवेट रहता है, वायरल लोड एलिवेटेड रहता है. तो इन दैट केस आपको नजर आ रहा है कि इम्यून सिस्टम इस वायरस को खत्म तो नहीं कर पा रहा है लेकिन ऑनगोइंग डैमेज चल रहा है. तो यू मे मेक ए डिसीजन टू स्टार्ट विद एंटीवायरल ट्रीटमेंट एट दिस पॉइंट. तो I would like to follow this patient for probably after 4 weeks with a repeat. Immediately, I may not do anything at this point. क्योंकि बच्चे को सवाल शायद नीचे है कि बच्चे का क्या करना है. बच्चे को आपने एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन करा दी होगी, ठीक है ना. अगर नहीं कराई है तो अभी करा दे और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर लें और बच्चे की वैक्सीनेशन को इंश्योर कर लें.
बट हैविंग सेड दैट, वहाँ के हेपेटाइटिस बी की कॉन्टेक्स्ट के अंदर यू मे फॉलो आफ्टर 4 वीक्स एलएफटीज करा के इसको रीचेक करेंगे, एंड विल मेक श्योर कि दिस इज नॉट ए फ्लेयर विच वुड एंड अप, बिकॉज अगर फ्लेयर एंड इज लीडिंग टू सीरो कन्वर्जन उसको आप इंटरफेयर करेंगे तो शायद सीरो कन्वर्जन डिले, देयर इज नो डेटा फॉर दैट व्हाट आई, बट दैट्स व्हाट आई एज ए फिजिशियन आई मे थिंक ये कर नेचर उसको खत्म कर रही है, तो आई डोंट वांट टू इंटरफेयर एनीथिंग, लेट इट हैपन। तो आई वुड फॉलो 1 to 2 months 4 वीक्स के ऊपर इसके एलएफटीज रिपीट करके और वायरल लोड को देख के एंड मेक ए डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और वेट फॉर द सीरो कन्वर्जन एज ए पोस्टमार्टम फ्लेयर। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन किया है, दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कि एचबिक की इंडिकेशन आफ्टर 25 डेज नहीं है, देयर इज नो डेटा सपोर्ट्स कि आफ्टर 24 आवर्स की कोई बेनिफिट है एचबिक का, बट स्केप्टिकल होते हैं कुछ मदर्स आफ्टर नोइंग। अब हम भी प्रिज्यूम कर रहे हैं कि माँ को शायद अब पता चला है कि हेपेटाइटिस बी सर्फेस नहीं पॉजिटिव है, बहुत हाई वायरल लोड है, दे में से कि अगर 1% या 0.1% चांस है, वी डोंट वांट टू टेक दैट चांस एंड दे में स्टॉप एक्चुअली लैक्टेशन, वी डोंट वांट दैट टू हैपन। लैक्टेशन के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, चांसेस बहुत कम है, यू मे काउंसिल देम कि एचबी की कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन इन सम पेशेंट, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कुछ वालिदैन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, तो इन दैट केस एचबिक लगा के हम उनको तसल्ली दे देते हैं कि भाई अगर हो भी जाएगी तो इससे रुक जाएगी, आप वैक्सीनेशन करा लें, और लेकिन वैक्सीनेशन बंद ना करें बिकॉज यू वुड ट्राई टू कंटिन्यू विद लैक्टेशन, सो फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट नॉट टू सपोर्ट एनी डेटा एचबिक 25 डेज के बाद इफेक्टिव होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ should what should be done for the वैक्सीनेशन, श्योर करें बच्चे की लैक्टेशन कंटिन्यू करें बच्चे को, और बच्चे का जो है 9 मंथ्स के ऊपर, बहरहाल आपने 3 मंथ्स और 9 मंथ्स के ऊपर बच्चे को करना है कि ट्रांसमिशन बच्चे में हुई तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग इन एचबीएस पॉजिटिव मदर। मेरा ख्याल है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। गाइडलाइंस इफ ऑन एंटीवायरल थेरेपी, देयर इज अगेन जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं वो सपोर्ट करती हैं कि इवन ऑन एंटीवायरल थेरेपी दे कैन कंटिन्यू विद जो है लैक्टेशन। देयर आर सम कंसर्न अबाउट कि भाई बच्चे की जो टेनोफोविर और एंटाकाविर बच्चे में जाएगी तो बच्चे को कोई डेफिसिट है। अगेन एचआईवी जो कोहर्ट है उसके अंदर जिन बच्चों को डेटा अभी तक आया है, मेरा ख्याल है 2000 से ज्यादा बच्चों का डेटा है जो कि जो लैक्टेशन के ऊपर एंटाकाविर टेनोफोविर ले रहे थे, उसमें कोई हार्म नहीं देखा गया किडनी फंक्शन के अंदर। बोन के ऊपर कहना कबल वक्त है, लेकिन जो डेटा अभी तक है के ऊपर भी बोन हेल्थ के ऊपर बच्चों की जो है कोई एडवर्स इवेंट्स नहीं देखे गए हैं। सो इट्स जनरली these antiviral treatment are safe during the lactation and they can be continued during the lactation. Any other comment or anything which you want to discuss या comment on? Ikram? हाँ जी, मेरे ख्याल में इफेक्टिवली चीजें तो सारी एड्रेस हो गई हैं। थोड़ा सा सर इस पे आप वो कर दें हाईलाइट कि आप बेबी जो है, जैसे इस केस में अगर इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, जैसे इनिशियल उसमें आमतौर पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो होते हैं। इकराम आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बेबी का आपने क्या बताया क्वेश्चन जो फेस किया? जी जी, अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अब मिस हो गई है वैक्सीनेशन इन दिस केस, इनिशियल जो वैक्सीनेशन है बच्चे की एक्टिव और पैसिव, आई अज्यूम के मिस हो गई क्योंकि अभी वो कंसर्न है, तो इस केस में फिर आगे लॉन्ग टर्म फॉलोअप कैसे होगा बच्चे का? और मतलब अगर इफेक्टिव अब पूरी तो कर लेंगे वैक्सीनेशन, लाइक 3 मंथ्स और 9 मंथ्स, कब उसका टेस्ट कराना है, कब पीसीआर कराना है? अच्छा, एक्सेलेंट क्वेश्चन। मैंने ख्याल इसको शायद बहुत ट्राइवियली ले लिया था, बट दैट नीड्स टू बी इलैबोरेटेड हियर कि बच्चे की अगर बर्थ डोज वैक्सीनेशन मिस हो गई है, एक तो ये कि ईपीआई की जो वैक्सीनेशन होती है 1 मंथ के ऊपर जो है उसके अंदर इन एनी केस जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, ठीक है ना। जो बर्थ डोज वैक्सीनेशन है वो तो हम कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ जो है बर्थ जो है वहीं पे लेबर रूम में लग रही है, लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का लगता है, जो फर्स्ट वीक के अंदर वैक्सीनेशन जो बच्चे को लेके जाते हैं उसके अंदर 0 डोज लग जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, और उसको पहली डोज लग गई होगी। और उसके बाद अब वैक्सीनेशन का स्पेसिफिक एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर
एक जनरल तो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल ये है कि 016 जो है ना आप लगा दें, लेकिन बच्चों के अंदर एचबीएस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स के अंदर जो है एक तरीका ये होता है कि बच्चों की जो है आप सरफेस एंटीजन लेवल कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर व्हाट आई वुड डू कि आप बच्चे का जो है टेस्ट करेंगे सरफेस एंटीजन लेवल। सरफेस एंटीजन खुदा ना खासा अगर पॉजिटिव हो गया है तो ये बच्चा तो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका, तो अब तो इसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लाइफ लॉन्ग फॉलो अप होगा इसका, क्योंकि 90% चांस ये है कि दिस चाइल्ड वुड सफर विद chronic hepatitis B। लेकिन अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है तो फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इसका एंटी एचबीएस कराया जाएगा, क्योंकि बर्थ डोज वैक्सीनेशन इसकी नहीं हुई थी, लेकिन इसकी 0 वैक्सीनेशन लगी हुई है। अगर मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट आ गई जो कि हम इम्यून स्टेटस कहते हैं एंटी एचबीएस करा के, तो अगेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एनी फर्दर डोजेज एक्स्ट्रा डोजेज एज वेल, ये इम्यून हो चुका है। अगर लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट आया है तो आप इमीडिएटली उसको एक डोज लगा देंगे और उसका 4 वीक्स के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट डोज, 2 डोजेज मतलब इसको आप लगा देंगे, और उसके बाद 3 मंथ के ऊपर जो है इस बच्चे को आप चेक करेंगे वो एंटी एचबीएस लेवल, और 6 महीने के ऊपर चेक करेंगे सरफेस एंटीजन एंटी एचबीएस लेवल। तो दैट वुड बी रिकमेंडेड एल्गोरिदम फॉर दिस चाइल्ड के इसका आप अभी इमीडिएटली हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटी एचबीएस करवा लें। अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और एंटी एचबीएस पॉजिटिव है तो यू आर वेरी सेफ। जो इसको बस डोज आपने मिक्स कर भी दी थी, एचबी हमने मिस कर भी दी थी, लेकिन स्टिल वैक्सीनेशन मौजूद थी और ट्रांसमिशन नहीं हुई है। खुदा ना खासा सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और एंटी एचबीएस नेगेटिव है, तो दिस पेशेंट probably is now suffering from hepatitis B, and this child might need a lifetime follow-up. I hope that answers the question. Ikram, have I been बिल्कुल clear on? नहीं तो आप क्लियर हो गया। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट यही है कि जितनी मतलब ट्रांसमिशन होती है, खास तौर पे जहाँ पे भी हमारा तो इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन ये है कि मैसेज बड़ा क्लियर है कि लाजमी तौर पे हेपेटाइटिस बी किया जाए प्रेगनेंसी में, बिकॉज इट इज प्रिवेंटेबल बाय द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो और अगर मिस हो जाएगा ऑब्वियसली तो आगे चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्रॉनिक में जाने के, जो है न्यू बॉर्न के। तो टाइमली जो है ना उसका आमतौर पे तो गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिट पे करते हैं जो होना चाहिए टेस्ट, लेकिन बाकी जहाँ पे नहीं होता है वहां पे भी मैसेज आना चाहिए कि डेफिनेटली इसका टेस्ट प्रेगनेंसी में होना चाहिए। अच्छा इकराम, एक क्वेश्चन उमैर ने शेयर किया है कमेंट में कि व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेफर ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी। प्रॉब्ली वी डिड टॉक अबाउट दैट कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो ट्रीटमेंट है ना वो टेनोफोविर डाइप्रोफॉक्सिल है, ठीक है ना। इट्स नॉट टैफ, इट्स नॉट एंटाकविर। जो डेटा अवेलेबल है जो सेफ्टी का बड़ा, वो टैफ का है, सॉरी टीडीएफ का है, दैट इज टेनोफोविर डेस्प्रोक्सिल। जो टेनोफोविर एलाफिनामाइड है उसके ऊपर इमर्जिंग डेटा मौजूद है एचआईवी की सीरीज के अंदर। इट में भी अगेन को इंडिकेटेड विद टीडीएफ टैफ भी इसमें जो है सेफ ड्रग्स की लिस्ट में आ जाए, लेकिन क्योंकि कुछ इमर्जिंग डेटा मौजूद है लेकिन एट दिस पॉइंट नन ऑफ द सोसाइटीज एक्चुअली रिकमेंड टैफ। टीडीएफ इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंटाकविर इज नॉट। एंडाकविर नहीं होने का ये है कि जो एनुअल स्टडीज में कोई एबनॉर्मलिटीज देखी नहीं गई है, लेकिन क्योंकि टीडीएफ का सिग्निफिकेंट डेटा अवेलेबल है, टीडीएफ के ट्रायल मौजूद है, और टीडीएफ का डेटा इसलिए अवेलेबल है नॉट बिकॉज के हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट करने के लिए वो टीडीएफ दिया गया था, एचआईवी की दवा मौजूद नहीं थी, और एचआईवी को सप्रेस करने के लिए एचआईवी की जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर टीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना को जो ड्रग्स हम देते हैं उसके अंदर। तो टीडीएफ का जो डेटा है वो एचआईवी के कोहर्ट से आ रहा है, और वो बच्चों के अंदर बहुत सेफ है और मदर के लिए काफी सेफ है, लैक्टेशन के लिए सेफ है। तो दैट मेक्स द चॉइस फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टीडीएफ को, क्योंकि उसका डेटा सबसे ज्यादा अवेलेबल है। तो दैट probably hope I hope that answers the question, and there is any other comment or question? अच्छा एक We चीज have और few मेरे minutes ज़हन में आ रही probably. थी कि जी मेरी आवाज आ रही है। जी डॉक्टर इकराम। जी जी आ रही है। अच्छा ट्रेडिशनल जो हमारी जैसे पहले था कि जैसे जो इवन यूरोपियन गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि 28th वीक पे हमने स्टार्ट करनी है जो प्रिवेंशन के लिए करनी है, जब लेवल ज्यादा हो मोर देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो अब आप क्या फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो अब रीसेंट गाइडलाइंस हैं डब्ल्यूएचओ की, जैसे वो कहते हैं कि रिस्पेक्टिव उस पे वो करें
और वायरल लोड के हिसाब से भी, तो क्या अब जैसे अगर हम इनकाउंटर हुए हैं किसी पेशेंट में इवन लाइक एट 20 वीक्स और हमें लेवल मिल गया है ज्यादा, तो उस वक्त स्टार्ट करनी चाहिए या हमें वही ट्रेडिशनली 24 to 28 वीक पे जाके स्टार्ट करनी चाहिए? क्लिनिकल प्रैक्टिस अभी इवॉल्व कर रही है, नई जो WHO गाइडलाइंस आई हैं उसके अराउंड अराउंड अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस चेंज हो रही है। लेकिन अभी तक जो है कंप्लीटली टर्न अराउंड नहीं है कि हम 100% जो है वो WHO गाइडलाइंस के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि WHO गाइडलाइन का एक कंसेप्ट ये भी समझिए क्या, वी आर प्रैक्टिसिंग इज ए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल ना, तो WHO गाइडलाइंस आर नॉट फॉर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, एक्चुअली दे आर फॉर द प्राइमरी केयर सेटअप, कि जहाँ पे लिमिटेड जिसे कहते हैं लैब्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, यू वांट टू ट्रीट मासेस to suppress the transmission and ongoing the prevalence of the स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स के अंदर अगेन डिसीजन मेकिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो चीजें मॉनिटर कर सकते हैं कि कब जरूरत है और कब नहीं जरूरत है, वो डिसीजंस वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। वो पेशेंट जिसकी एक्सेस के टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स की केयर है उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो शॉर्ट आंसर, वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू द WHO गाइडलाइंस। अगर मेरे पास आज कोई पेशेंट आएगा 20 वीक्स के ऊपर या 16 वीक्स के ऊपर हाई वायरल लोड के साथ, फॉर श्योर आई वुड ट्रीट। लेकिन अगर यही पेशेंट मेरे पास 16 वीक्स के पास बहुत वेरी लो वायरल लोड के साथ आएगा, विद नॉर्मल एलटी के साथ आएगा, आई मे डेफर द ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट, क्योंकि मुझे भी पता है कि इस पेशेंट को शायद, क्योंकि यंग पेशेंट है, लेस देन 30 की है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की इंडिकेशन इवन आउटसाइड प्रेगनेंसी नहीं भी होगी, तो मैं शायद थोड़े दिन फॉलो कर लेता हूँ, ये मेरे पास दोबारा भी आएगी ना। इसको मैं अगर कह रहा हूँ 4 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद अपने टेस्ट करा के दिखा दे तो आ जाएगी। तो दैट वुड बी माय आंसर कि इसके अंदर, बट ओवरऑल प्रैक्टिस इज इवॉल्विंग एंड प्रॉब्ली लीडिंग टुवर्ड्स WHO गाइडलाइन। अनवर भुट्टा साहब का क्वेश्चन है, इन्फेंट्स इफ गेट्स पॉजिटिव विद हेपेटाइटिस बी शुड टेफ बी गिवन। हाँ, अब बच्चों की ट्रीटमेंट जो है, बच्चों की ट्रीटमेंट की इंडिकेशन अगेन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ पीडियाट्रिशियन, आई एम नॉट अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये बच्चे मेरे पास आमतौर पर नहीं आते। बच्चे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं फॉर वायरल हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट, प्रैक्टिस एडल्ट मेडिसिन। बट हैविंग सेड दैट, बच्चों में आमतौर पर जो ट्रीटमेंट की सेफ्टी है दवाओं की, हेपेटाइटिस बी की, वो 3 years अबव के ऊपर है। लेकिन जो इंडिकेशन ट्रीटमेंट की स्टार्ट होती है, तो अगेन इट रिमेन्स द डोमेन ऑफ ए पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट। रिपीटिंग द डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट routinely treating children, so I may not be very aware of or updated on the pediatric। जो मुझे याद पड़ता है कि 3 years and 12 years is the time when you के उस पे इंडिकेशन है दवाओं की, और 12 के ऊपर शायद वो गाइडलाइंस रिकमेंड कर रही हैं। जी, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या चैट में पूछ सकते हैं। डॉक्टर मोमिना है, उन्होंने क्वेश्चन डायरेक्टली किया हुआ है। here in UK we are giving it from 20 weeks, like after first trimester, sorry। वो कमेंट किया है प्रॉब्ली उन्होंने, एंड दैट्स ट्रू। अगर मुझे वायरल लोड मिल जाता है तो आई वुड ट्रीट। लेकिन जो इकराम का क्वेश्चन था कि वायरल लोड अगर नहीं है तब भी क्या हम WHO, क्योंकि वायरल लोड नहीं रिकमेंड कर रहा है ना, वो ये कहता है कि सफिशिएंट रीजन पॉजिटिव है तो किसी भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर है तो आप उसकी एंटीवायरल ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो वो एक डिफरेंट क्वेश्चन था। बट इन प्रैक्टिस, यस, इफ 20 वीक्स आई गेट वेरी हाई वायरल लोड, तो आई वुड स्टार्ट। एंड वो यूके प्रैक्टिस बता रही है, यूके प्रैक्टिस में like these practices do vary at different geographical states, and that's what the state of affairs are। एग्जैक्टली बास हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इवन एक तो कॉस्ट डेफिनेटली इशू है, दूसरा टेस्ट जैसे अब कुछ गवर्नमेंट सेटअप्स ऐसे हैं DHQs में, वहां पे आप जब PCR भेजते हैं तो वो काफी महीनों बाद जो है ना वापस आती है रिपोर्ट। तो ऐसी कंडीशन में मेरे ख्याल में फिर WHO ही वो इसीलिए ही गाइडलाइंस हैं कि जहाँ पे रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी टेस्ट की है, तो वहाँ
वहां पे बजाय इसके कि हम लंबा चौड़ा वेट करें या उसका करें, ऑब्वियसली वहां पे मेरे ख्याल में दवाई दे देना बेहतर है, क्योंकि जो ऑब्वियसली जो इस बेनिफिट है वो ज्यादा है, दवाइयाँ सेफ हैं और बहुत महंगी भी नहीं है। तो आई थिंक वहां पे काफी ज्यादा इसकी अहमियत आ जाती है कि फिर हम जो है वो मेडिसिन दे दें जहाँ पे टेस्ट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। हाँ जी, मेरे ख्याल में और अभी क्वेश्चन कोई है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं- अदरवाइज सर मैं- टाइम पूरा होने वाला है सर तो। एक question, जी मैं सर मेरे जी साथ जी। एक आज मेरे एक फिजिशियन दोस्त है, उन्होंने मेरे साथ एक केस डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले ही। पेशेंट उनके पास है, 28 ईयर्स ओल्ड यंग मेल था। उसने अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया, उसके ऊपर उसका सिरोसिस और साथ में स्प्लीनोमेगाली आई है। तो उन्होंने उसके बाद में वो वायरस स्टेटस कराया, उसमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आया, लेकिन उसका पीसीआर नेगेटिव आया। तो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि इसको नेक्स्ट ऐसे कैसे इसको लेके चलना है। तो मैंने कहा जरा मैं आज ही अभी डिस्कस हुआ, मैंने कहा सर से, वैसे मैंने उनको कहा था कि एक दफ़ा आप देख लें दोबारा पीसीआर, किसी अगर लैब अथेंटिक है, नहीं अथेंटिक तो फिर किसी और अच्छी लैब से एक दफ़ा पीसीआर रिपीट करवा लें। और उसके अलावा बाकी भी आप जो दूसरे काजेज हैं उसमें भी आप देख लें, सिरोलोप्लाज्मिन वगैरह की तरफ या उसके केएफ रिंग या विल्सन वगैरह की, उसका वर्क मैंने उनको कहा था पहले करवा लें, लेकिन पहले एक दफ़ा पीसीआर किसी अच्छी लैब से एक दफ़ा रिपीट करवा लें। तो इस केस में मैं कैसे अच्छा। इसको लेके चलना चाहिए? लेट्स सपोज अगर वो नेगेटिव भी जी आता है जी। और बाकी सारा कुछ नेगेटिव आता है तो। अच्छा। अच्छा उमेर, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि ये सिरोसिस स्टैब्लिश हो गई है, सिरोसिस के लिए एक कॉज की वर्कअप जो आपने उनको बताया कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, दैट मे नॉट बी द कॉज हेपेटाइटिस बी ना हो, तो आपने दूसरे कॉजेज करवा लिए, दैट्स ओके। लेकिन पीसीआर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट की जिसे कहते हैं ना, अब वो नहीं रह गई है। इन ए पेशेंट विद एस्टैब्लिश्ड सिरोसिस और एडवांस लिवर डिजीज, whatever the level of the PCR, lifelong treatment is recommended. So B surface antigen positive है, या even some people would say कि core antibody भी अगर positive आ गई है टोटल और सिरोसिस का और कोई कॉज स्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो आप इसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट दें। तो दिस इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। लेकिन सिरोसिस के पेशेंट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट केयर जो मिस कर जाते हैं वो ये याद रखिएगा कि रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द सिरोसिस, वो बी है, सी है, मैश है, या कोई विल्सन है, वट, सिरोसिस स्टेब्लिश हो गई है, एचसीसी सर्वेलेंस बहुत जरूरी है। तो आप उसको एचसीसी सर्वेलेंस पे रखेंगे। कॉस्ट ट्रीट करने के लिए आपने कुछ टेस्ट करवा लिए दूसरी जो मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, प्रीज्यूमिंग द हेपेटाइटिस बी रिलेटेड सिरोसिस है, तो नेगेटिव पीसीआर डज नॉट प्रिक्लूड के इसको आपने जो है दवा नहीं देनी। इफ आई वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव स्टार्टेड विद द मेडिकेशंस के अब वायरल लोड वाला जो चीज है इन एस्टैब्लिश्ड सिरोटिक पेशेंट इज आउट नाउ कंप्लीटली। सरफेस एंटीजन पॉजिटिव सिरोसिस इज देयर, क्लिनिकली मौजूद है या लैब टेस्ट के ऊपर मौजूद है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। So, आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है मिस किरण, तो फिर हम कॉल ऑफ करें। sure. Thank you very much, Dr. Zishan, और डॉक्टर इकराम आपका भी। सो नेक्स्ट जो है हमारा सेशन है, इट्स ऑन 11 और ये भी केस बेस्ड डिस्कशन है। एक्यूट एचपीवी एचसीवी को इन्फेक्शन, और हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर सैयद आसिफ रजा जैदी। और फॉर टाइमली रजिस्ट्रेशन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ईमेल एड्रेस गेट्स फार्मा के रिप्रेजेंटेटिव या उजैर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, इनका फोन नंबर और ईमेल मेंशन होता है बैनर पे, उन पे आप रजिस्ट्रेशन करा लें। हमारी जो रजिस्ट्रेशन वेडनेसडे के सेशन के लिए है वो मंडे को 12 बजे सुबह के वक्त क्लोज हो जाती है। उसके बाद फिर अगर आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको सीएमई सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, और वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू टीम एट पारसा ट्रस्ट एंड पारसा एको पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। उजैर, यू कैन कॉल ऑफ द मीटिंग। Sure, ma'am.